In a world where likes, shares, and emojis rule, managing relationships can seem like a maze. Welcome to the Gen Z Relationship Management Podcast, where college girls navigate the intricacies of modern connections. We cut through the noise, break down the walls, and decode the digital lingo. We're here to help you foster genuine relationships in a virtual world. Tune in and let's decode Gen Z connection. Hello guys, welcome to the Gen Z Love Decoder, the podcast which dive deep into the world of relationship with the Gen Z twist. I'm your host Deepika. And I am your host Anjeet. Today we are exploring in and out of relationship in digital age. Welcome our guest Tarush, Hi, I'm Tarush. Dipesh, Hi, I'm Dipesh. and lastly Saksham. Hey, I'm Saksham. So hi guys, welcome to our podcast. Basically talking about the relationship in the Gen Z and the relationship management. So what do you guys think? Is Gen Z approach of dating is different from the previous generation? In previous times, everything was so pure. Those first touches, those first eye contacts. But in nowadays, it's just attractive Insta IDs and beautiful steps. भाई लाइक आजकल के रिलेशनशिप आर ऑल अबाउट स्वाइप्स एंड इंस्टाग्राम ये फॉलो कर लिया फॉलो बैक आ गया एंड लाइक पहले के टाइम पे तो लोग कनेक्ट करते थे इन फिजिकल वर्ल्ड जाके बट आजकल तो यही सोशल मीडिया पे ही हो रहा है सब Yes, Now, what do you guys think? Gen Z love is too complex or what? Yes, I think it is very complex because there are new terms like situationship, delusionship, talking stage, emo dating, and benching. या बेंचिंग से मेरे पास एक स्टोरी है जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की थी नाम नहीं ले पाया बट लेट्स कॉल हिम आलू so Alu was in a relationship and they been dating for 2 years but Alu पता नहीं out of curiosity आप बोर हो गया he found a new girlfriend so benching usually आप रिलेशनशिप में होते हो बट आप एक दूसरा ऑप्शन रखते हो कि if your current girlfriend leaves you or something so you have another option so Alu dated a girl on BBMI and kept her as the option वो रोज बात करते थे उसने कभी बताया नहीं बट इन द एंड वो लड़की उसकी कजन सिस्टर निकली करंट गर्लफ्रेंड की एंड ही लॉस्ट बोथ ऑफ देम Like seriously, people are dating on the gaming apps. Like ये थोड़ा सीमा हैदर जैसे साउंड नहीं कर रहा. भाई आजकल लोग एक पे टिक ही नहीं सकते, सबको एक ऑप्शन चाहिए. फॉर रियल भाई यार आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है. Yeah. So guys, like let's moving on further. Like, do you have any cringe-worthy mishap or you have experienced or heard about? Arey, let me tell you one. Once a girl approached me for relationship, knowing that I was already in a one, but she was like, "I too don't को date कर ले, I can't let you go. I don't have any problem." Or any funny experience anyone of you have or not? वेल या सो एक जूनियर थी मेरे सामने क्लास में शी जस्ट मूव एंड उसने मेरे को फर्स्ट डे देखा था एंड शी टेक्सटेड मी दैट कि मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है एंड प्लीज़ मेरे फ्रेंडशिप में आ जाओ आई लव यू सो मच एंड भाई एक दिन में देख के किसको ये सब इतनी फीलिंग्स आती हैं सो दैट वाज वेरी ऑकवर्ड भाई मेरा भी एक एक्स था, उसने मुझे बहाना दिया वोट्स का, पर उसे अपनी एक्स के पास वापस जाना था. Bro, people are so sick these days. Actually, now let's shift our gear and let's talk about mental health. क्योंकि अब both की बात आई ही है, तो let's talk about like how relationship affect our studies and the issues we face in relationship. Because हमेशा वो जो हमारा एक golden like honeymoon phase होता है relationship में वो हमेशा तो चलता नहीं है. Every coin has two sides, right? So now let's talk about the negative side of relationship, the issues we faced in that. Yes, I had my 12th standard boards, but 2 days back, my girlfriend broke up with me, and that was so tiring and depressing that I couldn't focus and I failed in that exam actually. सेम भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कुछ लाइक मैं 10th के बोर्ड्स दे रहा था अपने एंड नया नया रिलेशनशिप था तो इट वाज ऑल फन
सो हम पूरे दिन एक दूसरे से बात करते रहते थे, जबकि पता है दोनों के बोर्ड्स हैं, बट तब भी दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं पूरे दिन, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पूरे दिन, ये पूछ रहे हैं कितना पढ़ा, बट कोई पढ़ ही नहीं रहा था। बट तब भी हम उसे इग्नोर कर रहे थे, एंड एट द एंड हम दोनों के मार्क्स बहुत बेकार आए, एंड आई स्टिल रिग्रेट इट, क्योंकि अब वो लड़की तो पता नहीं कहाँ है। बट भाई इन माय सिनेरियो इट वाज टोटली डिफरेंट। मेरा बंदा तो बहुत समझता था और हम दोनों पढ़ते थे और हमारे अच्छे मार्क्स भी आए। भाई पर सबका अलग अलग सीन है। मतलब मैंने देखा है कि कुछ बंदे समझने को तैयार ही नहीं है कि कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दे, या कोई स्पेस मांग रहा है तो उसे स्पेस दे। तो इस चक्कर में ना उन्हें लगता है कि वो स्पेस मांग रहे हैं तो वो किसी और के साथ ऑप्शन बना रहे हैं। तो इस चक्कर में उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब होती है और टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तुम एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तुम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो एंड अंडरस्टैंड करो कि वो क्या चाहते हैं, और वो झूठ नहीं बोल रहे। यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड यू शुड हैव दैट बॉन्ड कि तुम दोनों एक दूसरे पे इतना विश्वास रखो कि भाई दूसरा बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल That's really true. Yeah, exactly, guys. या तो like you have that maturity, like relationship में आने से पहले वो maturity ला, either you don't start that thing, और अगर करती है तो like अपना full effort डालो, prioritize thing, the prioritizing is the main thing, कि आप like चीजों को करो कि आपके लिए क्या important है क्या नहीं है। It's not like कि आप एक चीज में हो तो उसी में रह जाओ, और अगर आप रेडी नहीं हो तो उस चीज को शुरू मत करो, बिकॉज आप तो अपना कर लोगे लेकिन दूसरे बंदे की मेंटल हेल्थ तो खराब हो रही है ना उस चीज से। For real, for real. रियल भाई, बहुत रियल। Okay, so now let's shift our gear and talk about mental health and issues people face during relationship phase. Like, what do you guys think? What are the kind of issues people face in that? Like I think people suffer a lot through like stress, anxiety, depression due to like lack of respect between them, जिसकी वजह से they end up turning suicidal things and all. फ्रॉम माय ओपिनियन आई गेस कुछ लोगों के मन में ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो फ्यूचर में किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, एंड वो फिर से रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते। एंड कुछ Yeah, लोग तो exactly. काफ़ी गलत आदतों में भी लग जाते हैं, लाइक नशे एंड ऑल। बट देर आर सम पीपल जो अपने आप को और ज़्यादा अच्छा करते हैं, टू लाइक इंतकाम, जैसे मूवी में करा था उसने, अपने आप को मोटिवेट करते हैं आईएएस बनने के लिए, और अपने ड्रीम्स चेस करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बॉडी बनाते हैं। एक्चुअली लाइक मैंने देखा है लोग हाँ, इवन exactly. पिल्स तक लेते हैं, मेडिकेशंस पर आ जाते हैं इन ऑर्डर टू कोप अप विद दैट डिप्रेशन। पढ़ाई लिखाई जॉब वॉब सब छोड़ दी, जस्ट लाइक एक पर्सन के पीछे अपनी पूरी लाइफ र्यून कर लेते हैं लोग। बट एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि ऑप्शन आपके पास ही है, या तो आप सत्तू आईएएस बन जाओ या आप कबीर सिंह बन जाओ। सो लाइक हमने इश्यूज की तो बात करी, व्हाट डू यू गाइस थिंक, लाइक उससे हम कोप अप कैसे कर सकते हैं अगर हमारे लाइफ में ऐसी सब दिक्कतें आई हैं। सो लाइक व्हाट आर द एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द जेंजीज फॉर दैट? To cope up with that, the best option is to take breaks. People should take breaks so that they can realize the real worth of their partner in absence of them. Like ब्रेक लेने से आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पार्टनर में क्या क्या कमी है और आप में भी, so that they can in end they can communicate and talk about it. And the best way for me is to seek support from your family and friends. You should spend time with your family and friends as much as you can. What are your reviews, Tarush? या लाइक पर्सन्स शुड ट्राई टू एड्रेस इश्यूज, लाइक अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ रही रिलेशनशिप में, क्या चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आ रही जो वो चेंज करें। अगर तुम अपने आप ही ये सब सोच के ओवर थिंक करके अपना मुंह बना लोगे तो उससे कुछ फिक्स नहीं होगा ना। सो पीपल शुड ट्राई टू कम्युनिकेट एंड फॉरगिव, कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो उसके में वो माफ़ कर दें, एंड दे मूव ऑन फ्रॉम दैट। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरे रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट आ सकता है। आई थिंक कि सबको रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी चाहिए, और अगर कुछ होता है तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे तरीके हैं थेरेपी, और यू शुड सीक साइकेट्रिस्ट। या यूर राइट। एंड मैंने ये भी देखा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप की सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। अगर थिंग्स सॉर्ट नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं है उस इंसान के पीछे भागना। हमें
सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और बेटर पर्सन बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो सके। आई कैन टोटली रिलेट विद दैट। आई रिमेम्बर जब मैं 10th के एंडिंग में मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे चीट किया था, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि यार अब तो बस बॉडी बनानी है, एंड इसका जो करंट बॉयफ्रेंड है ना, इससे अच्छी बॉडी बना के दिखानी है। एंड इस वजह से ही आई गॉट इनटू जिम, एंड आज मेरी फिजिक काफ़ी सही है। क्यों ऐसी चीज के पीछे भागना जो आपको खराब कर रही है? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप खुद। तो अगर आप खुद जब तक ठीक नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी बेटर नहीं कर सकते। लाइक एक मैंने कहीं पढ़ा था, एक न्यूज, एक पोल में, कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर दूसरा इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में आके हमें बेटर नहीं बना सकता, हम ये सोचे कि वो हमें एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पर लेकर जाएगा। इट्स नॉट ट्रू। द रियलिटी चेक इज कि आप किसी भी रिलेशनशिप में तभी खुश हो सकते हैं जब आप खुद बेटर हैं, तभी आप उस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। सो हमने इतनी सब चीजों की बात करी। द थिंग इज, हम जब जेनजी की बात करते हैं, बेसिकली जो जनरेशन है वही है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो रिलेशनशिप से हमारी पढ़ाई पे क्या इफेक्ट होता है? आपको क्या लगता है कि क्या इफेक्ट आपकी लाइक स्टडी पे होता है, और आप उन चीजों से कैसे कोप अप करते हैं? बिकॉज हम सब उसी सेम जनरेशन से गुजर रहे हैं। या आई टोटली एग्री विद दैट। रिलेशनशिप में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक दोनों बंदों को अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना चाहिए कि इस टाइम हम यहाँ ये काम करेंगे, इस टाइम हम बात करेंगे, एंड इस टाइम हम वापस से अपने गोल और पढ़ाई जो भी तुम आज कर रहे हो उस पर फोकस करेंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो थिंग्स गेट फक्ड, एंड ना तुम अपना रिलेशनशिप मैनेज कर पाते हो और ना जो तुम चीज़ पर फोकस कर रहे हो उस पर फोकस कर पाते हो। एंड क्वालिटी टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने तुम पार्टनर को एक क्वालिटी टाइम दे रहे हो जो उसे चाहिए, नहीं तो वो ओवर थिंक करता रहेगा अकेले कि यार ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, पूरे दिन बिजी रहता है। सो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। सो गिविंग क्वालिटी टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस भाई, आई टोटली एग्री विद यू। प्लस हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने गोल्स को पहले रखना चाहिए, और रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज भी करनी चाहिए अगर हमें अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है तो। या लाइक सेम भाई, अगर किसी चीज की वजह से आपको सफर करना पड़ रहा है तो लेट दैट थिंग गो। All right, we have covered a lot of ground today, but before we go, let's end on a fun note. So, if your And relationship had a theme song, what would it be and why? For me, it would be Channa Meria. आई गेस आजकल के जनरेशन्स के लिए तो सबसे बेस्ट गाना यही होगा, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता तो कई बार है। भाई फॉर मी तो इट्स लवर बाय टेलर स्विफ्ट। भाई हमारे यहाँ तो सारी लवर गर्ल्स ही भरी पड़ी हैं। guys, I Well, love the choice of your. Well, that's all the time we have for today. Thank you so much to our guest for giving us this opportunity and to share this podcast with us. And thank you to the listener as well. Until next time, remember to keep swiping, setting boundaries, and spreading love.